Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of M Education, Assalamu alaikum. Today I would like to share with you a very important lecture related to teaching of English. As you know that yesterday we have already discussed about the very important skill, the listening skill, and we had already discussed about the meaning and the principle and the other related knowledge about listening skill have discussed. The most important thing which I would like to revise and recapitulate today is interferes with listening comprehension. These are the very important points. These are the difficulties. These are the problems. These are the barriers which are a big hindrance for listening. And as I had told you yesterday that the main problem is the sound problem. The sound of the words. In other words, we can say the phonology and the phonetics. The phonology and the phonetics is a major cause that affects upon our listening comprehension. And the second thing which I had discussed with you is the grammar. Grammar are the basic rules which are applicable to make the four skills with accuracy and with fluency. And as I have discussed with you, the interferes just like unfamiliar vocabulary. This is also a very big problem. Grammar, text too long, several people talking, unfamiliar context, lots of details, topic not interesting, theme not clear, accent, strong forms and weak forms, intonation, elision, linking, speed, idiomatic speech and task too difficult, unprepared for the discussion, not prepared for the format, a lack of backward information. Dear students, these are the interferes which are very trouble, which are the major troubles for listening comprehension. The important thing which I would like to share that strategies to teach listening comprehension. What are the strategies which are very important, to improve our pronunciation, our intonation, our elision concept and other things. This is bottom-up strategies and top-down strategies. Dear students, number one, bottom-up strategies. Number one, counting syllables by using a rubber band, teaching word stress. Basically, this is a strategy by which we can convey
our theme, our opinions, our thoughts, and our information through communication. The syllables basically are the patterns that are used while stress the words. दूसरा यानी कि हम इसमें ये कह सकते हैं, देखें ना, जैसे ये लर्निंग आउटकम्स में ये है, द लर्निंग द कंसेप्ट टू रीड राइट स्पीक लिसनिंग, बेसिकली अभी जो लिसनिंग है ये चल रही है, और ये जो है ना ये एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज को भी छोड़ें। मैं इसके साथ साथ आपको ये बता रहा हूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स या व्हाट आर द you can say that what are the important practices which are helpful to improve the listening skill, यानी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके जरिए हम अपनी जो लिसनिंग स्किल है इसको बच्चों इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको बेहतर कर सकते हैं। कल तो मैंने इसके बैरियर्स और काउंटिंग के हवाले से आपको बताया था, लेकिन आज the number one skill, please take a ballpoint and a diary and write what is I am going to teach you. The first point, activities to develop listening skills. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं आप ना ज़रा कुछ 2 मिनट के लिए वक्फा कर लें, उसके बाद मैं दोबारा आपसे ज्वाइन करता हूँ प्लीज़। यानी कि जस्ट फॉर 2 मिनट्स आई वुड लाइक टू गिव यू ब्रेक। थैंक यू।
जी, welcome again. I just reached back. Activities to develop listening skills. The number one, informal talks. Please note informal talks. The second one, this is also very word identification exercise. Word identification exercise. यहाँ पे ये कह सकते हैं एक्सरसाइजेस. मुझे उम्मीद है ये आपने नोट कर लिया होगा. एंड द थर्ड वन, डिक्टेशन. Dictation. The third one is dictation. And the fourth one, listen and do exercises. Listen and do exercises. And the number four, dear students, picture identification exercises. Picture identification exercises. And the number six, question answer exercises. Question answer exercises. Dear students, these are the activities which are helpful to improve, to develop the listening skills. Yesterday we have discussed about the problems and troubles and interferes in listening comprehension, and the today activities to develop listening skills. This is the important topic for you and try to remember it well. No, I know. And the number seven, close, CLOZE, close text, and you can say exercises. The number one exercise, this is very important in this regard, activities to develop listening skills. These are the skills, and I also would like to say you that if you want to do MA English, any students who have a good taste in English, this is very important lecture. But I think that all the teaching of English lecture is very important for you, because there is just one paper that is composed of teaching practice for skills, teaching aids, etc. In other words, I would like to say you that the syllabus that I am going to teach you, this syllabus is also used for MA English. A paper that the name of the paper is TEFL. TEFL means teaching English as a foreign language. So please try to understand, try to learn it by heart. Please make notes, note these lectures in your notebooks. The first point which I would like to tell you, the informal talks. Informal talks means talks that we do in our daily life. The teacher will present some recorded dialogue or some radio and TV program, and the students will be asked to listen for some specific information to get the main idea. इसका मतलब ये है कि जो टीचर है वो बच्चों को
आजकल मैं ये कह सकता हूँ कि बल्कि मोबाइल के ऊपर कोई भी जो एक हिंट है वो एक टीचर हिंट लिखता नहीं है, बल्कि जो टीचर है वो हिंट पढ़ता है, या मोबाइल के जरिए पढ़ा जाता है, या कोई भी क्लिप टीवी के जरिए पढ़ा जाता है, या कोई भी क्लिप जो है वो बयान किया जाता है, और उसके बाद जो टीचर होता है पूछता है कि व्हाट वाज द मेन आइडिया ऑफ दिस क्लिप, व्हाट वाज द मेन आइडिया ऑफ दिस डिस्कशन, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस, यू कैन से चिट चैट और डिबेट मीन मुबाहिसा। यानी कि एक पैराग्राफ सुना जाता है और उसके बाद टीचर ये कहता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि बताएं कि इस पैरा के अंदर कौन सी बात की गई है। What type of knowledge and information has been shared in it? So this is very important for you to understand the informal talks. The second one, word identification exercises. Word identification exercises are very important because the students are given a list of groups of words of nearly same sounds. The teacher will speak out a word and ask the students to tick the listened word. एक बात ये ध्यान में रहे कि टीचर कुछ अल्फाज कहता है सेम साउंड के, मिलती जुलती के, और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर ये होता है कि जो स्टूडेंट है उसको नोट करता है अपने पास, या स्टूडेंट उसके बाद उनको यानी कि स्पीक आउट करता है, लिखता नहीं है बल्कि स्पीक आउट करता है। जैसे मैं आपको एक दो लफ्ज बताऊंगा, जैसे हम कह सकते हैं फाइट, राइट, साइट, माइट, हाइट, टाइट। इस तरह हम कह सकते हैं जैसे बैट, बैट, बट। हम कह सकते हैं मेन, रेन, ट्रेन, रेन, और इस तरह के जो भी लफ्ज हैं, ग्रेन वगैरह। इस तरह लफ्ज है गेट, सेट, वेट, और भी हेट वगैरह जो भी हैं। तो बच्चा जो है पहले आवाज सुनता है फिर बोलता है। एंड द थर्ड एक्टिविटी विच इज यूज्ड इज डिक्टेशन। बच्चों डिक्टेशन क्या होते हैं? उर्दू में इन्हें इमला कहते हैं। डिक्टेशन क्या होते हैं? पंजाबी में इन्हें टोकमे कहते हैं। डिक्टेशन क्या होते हैं? आम अल्फाज में ज़बानी लिखाए गए ये अल्फाज होते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं जी कि प्लीज राइट इनटू योर नोटबुक्स द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड बोके, द वर्ड ऑफ जार्गन, द वर्ड ऑफ पर्टिकुलर, द वर्ड ऑफ एक्सीलेंस, द वर्ड ऑफ लेप्रेसी। तो जो आप मेरी आवाज सुनेंगे, सुनने के बाद यानी सुनेंगे, सुनने का मतलब है कि लिसन करेंगे। मैं कल का ये बता रहा हूं कि लिसन का मतलब होता है बात को ना सिर्फ सुनना बल्कि उसको समझना भी। और आप जब सुनगे उसको समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी विल बी नेम्ड एज डिक्टेशन। इसको हम डिक्टेशन बोलेंगे। And the number 4, listen and do exercises. Listen and do exercises. In these exercises, please attention please, तवज्जो से मेरी बात सुनना। In these exercises, the teacher will give instructions and the students will listen and perform. The teacher may proceed like this. यानी टीचर ये कह सकता है draw a circle on the right corner of the page, draw a square around them and write your name above the square. और ये भी कह सकते हैं कि write, draw a circle and
After making a circle, draw two eyes in the circle, and between the eyes also draw a nose, and below the nose draw the shape of the lips and the external corner, and the second external corner draw the ears. Then you will see that there have been a shape of the circle that will be changed into being. Basically, the main thing at this point is to listen and do. Listen and do यानी कि हम सुनते हैं फिर उसके मुताबिक काम करते हैं. And the number 5, very important dear students, picture identification exercises. टीवी लग गया सीएडी तक हम नहीं है. Listen, picture identification exercises. बच्चों इसमें ये है, the teacher will give the students a paper with pictures of person, things or numbers on it. I think that you are getting my point, which I am going to discuss with you. The teacher will give the students a paper with pictures of persons, things or numbers on it. Then he will read out a passage to the students and ask them to identify the pictures on the basis of their listening. पिक्चर्स दी जाती हैं, उनको शनाख्त किया जाता है और उसके बाद उनको लिखा जाता है. और उसके बाद टीचर पैराग्राफ, और पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि जिन जिन पिक्चर का मैं नाम आपने और आपने जब उन पे टिक लगानी है तो उसके बाद मिसाल के तौर पर यानी कि टिक उसी वक्त बंदा लगा सकता है जिस वक्त वो समझेगा कि मिसाल के तौर पे उसकी कंप्रीहेंशन होगी. अगर उसकी कंप्रीहेंशन नहीं होगी तो वो टिक नहीं लगा सकेगा. इसके अलावा बच्चों नंबर 5, 6 है क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज. सो सिंपल and so easy and so beneficial that you can't imagine. Dear students, mind it one thing and fact please, that question answer is a good activity. Question answer goes to a big philosophy that is called the Socratic method. सुकरात क्या करता था? आपने स्टूडेंट से सवालात पूछता था. सुकरात ने अपने स्टूडेंट्स को ये बात बोली हुई थी कि आपने सवाल पूछने हैं, और बच्चों उसका बड़ा ये एक बिलीफ था कि जो सवालात हैं ये पूछने से बच्चे की अक्ल बढ़ती है, क्योंकि सवाल सोचने से पहले एक मरहला आता है जिसे सोचना कहा जाता है, ख्याल करना, थिंक करना कहा जाता है. तो जो बच्चा थिंक करता है वो सवाल करता है, और थिंक करने की वजह से उसकी जो थिंकिंग पावर होती है वो बेहतर होती है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़े चीजें सोच सकता है और बड़े बड़े कारनामे सारे अंजाम दे सकता है. कंग्रेचुलेशंस. तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आंसर आर द सोर्स फॉर मेकिंग द थिंकिंग of the students confidence and their thinking
and they are thought provoking. Thought provoking is owed to the well question answers exercises. ये तो इसका एक फायदा है कि इसके जरिए इंसान की थॉट प्रोवोकिंग होती है, इंसान के अंदर सोचो फिक्र गौर फिक्र का जज्बा पैदा होता है। जो जिस तरह हम कहते हैं ना कि जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है कि एक स्किल होती है ना, हर एक चीज की स्किल के लिए प्रैक्टिस प्लस टाइम इसकी जरूरत होती है। कोई भी अगर आपने स्किल इंप्रूव करनी है उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और सही उसके ऊपर टाइम दें, आखिरकार आप उसमें माहिर बन जाएंगे। जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है ना बच्चों, ये भी एक स्किल है जिसके जरिए क्या होगा कि आपकी थिंकिंग जो होगी ना ये बहुत बढ़ जाएगी। जब लोग एक चीज के बारे में सोच रहे होंगे तो आप एक के बजाय 10 के बारे में सोच रहे होंगे। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि आपका जो थिंकिंग लेवल है बाकियों से बेहतर होगा। वो कहते हैं जब सारे लोग एक ही तरह का सोच रहे होते हैं तो असल में कोई भी नहीं सोच रहा होता, इसलिए कि उन सब का IQ एक जैसा होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जहानत को इम्प्रूव करें, अपनी सोच को डेवलप करें, उसको बूस्ट अप करें, उसको ग्रूम अप करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों आप ज़्यादा गौर फिक्र करें। और गौर फिक्र करने यानी कि कैसे होता है? ये क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज से होता है जो कि हमने बच्चों के अंदर डेवलप करनी होती है। तो जब आप ये तो हुआ एक इजाफी एडिशनल फायदा। वैसे अगर आप इंग्लिश में जब बच्चे से सवाल करेंगे, बच्चा सबसे पहले सवाल समझेगा फिर जवाब देगा ना, तो बेसिकली ये टू वे कम्युनिकेशन होती है। और जब टू वे कम्युनिकेशन होती है तो इसमें जो लिसनिंग होती है और इसमें जो स्पीकिंग होती है दोनों इंप्रूव होती हैं। तो इसलिए बच्चों क्वेश्चन जो है छोटे छोटे, जैसे यू कैन से व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर, व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम इन योर फ्यूचर, व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, व्हाट इज योर फेवरेट डिश, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हाट इज योर फेवरेट वेदर, व्हाट इज योर फेवरेट कंट्री, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इफ यू बी अ मिलियनर, यानी अगर तुम अमीर हो जाओ तुम क्या करोगे। तो ये जो क्वेश्चन है दीज आर ऑल टाइप्स क्वेश्चंस आर गिव अ चांस द स्टूडेंट्स टू थिंक ओवर, टू ponder over, and then he speaks their answers according to his quest and mentality। लिहाजा सवालात जो हैं ये ज्यादा पूछने चाहिए। और ये भी हो सकता है I would like to say the listening comprehension can be improved by giving a script about myself, यानी कि myself का मजमून भी दे सकते हैं, and then questions can be made about the script. This is another activity। बच्चों को एक पैराग्राफ दे दें, कायदे आज़म का मजमून दे दें और बच्चों को बोलो बच्चों यू हैव स्पेयर 10 मिनट्स, आपके पास 10 मिनट का टाइम है, and within 10 minutes you will have to go through all the given paragraph, and after paragraph completion you will have to give the answers of the given questions। जब बच्चों को ये बता दिया जाएगा कि ये सवालात हैं, इनके जवाब आपने पढ़ने के बाद देने हैं, तो फिर क्या करेंगे कि बच्चे बड़े गौर से उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और जब वो पढ़ेंगे तो उनकी रीडिंग इंप्रूव होगी। फिर जब आप सवाल करेंगे तो उनकी लिसनिंग भी इंप्रूव होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर द स्टूडेंट्स। यू कैन अप्लाई फॉर योर स्टूडेंट्स। एंड द नेक्स्ट close exercises। Dear students, close exercises mean in these exercises teacher will give the students a list of words, then he will read out a passage to them. After this he will give them the same passage in written form with blanks at regular intervals। इंटरवल का मतलब होता है वक्फे। Every 5th, 7th or 9th word may be deleted। On the basis of their listening, the students will fill in the blanks। I strongly hope that you will have understand
you will understand easily. मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूं कि मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं कि बच्चों को एक पैराग्राफ देते हैं, उसके बाद बच्चे जब पढ़ लेते हैं तो आप उसके बाद पढ़ने के बाद जब पैराग्राफ आपने पढ़ लिया तो फिर उसके बाद दोबारा जब देंगे तो बीच में कुछ आपने लफ्ज वगैरह क्या होगा, खाली जगह छोड़ी होंगी, यानी कि आपने क्या किया होगा, यानी कि वो छोड़ा होगा, उसके अंदर खाली जगह छोड़ी होंगी। तो वो जो बच्चे होंगे, आप जब बोलेंगे कि उन खाली जगहों में ये फलां फलां लफ्ज आते हैं, तो वो बच्चे पहले सुनेंगे लफ्ज, फिर उसके बाद वो फीलिंग करेंगे, इससे उनकी जो लिसनिंग है ये ज्यादा बेहतर होगी। लिसनिंग बेहतर होगी तो इसमें उनकी जो राइटिंग होगी ना बच्चों, वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और ये था बच्चों कि आप अपनी जो लिसनिंग है इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि, क्योंकि आज का जो तीसरा लेक्चर था वो बेसिकली इसी के हवाले से था। अभी जो इसी टीचिंग ऑफ इंग्लिश के हवाले से है, इसी के अंदर एक मैं मिसाल के तौर पर और लेक्चर जो आपके सामने, यानी कि ये मैं चाह रहा था कि मैं शेयर कर दूं, तो ये है कि छोटे लेवल के ऊपर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मानी जाती है वो बच्चों डिक्टेशन एक्टिविटीज मानी जाती हैं। जो डिक्टेशन एक्टिविटीज होती हैं ये लिसनिंग स्किल के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती हैं, छोटे लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे। These are the very important realities. These are the very important exercises that are helpful to improve the listening of the students. The first one, dictation activity, single word dictation. Single word dictation. सिंगल जो मिसाल के तौर पे ये जो एक्टिविटी है उसमें ये है बच्चे को लिखाते हैं। हम एक एक जो लफ्ज है ये बच्चों को लिखाते हैं सिंगल वर्ड डिक्टेशन में। एक एक जो लफ्ज बच्चों हम सिखाते हैं इसमें ये याद रखिएगा कि सिंगल जो वर्ड है इसके भी स्टेप्स होते हैं। पहले होता है टू, यानी कि स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप बच्चों 1 में ये होता है कि आप दो लफ्ज के पहले लफ्ज बच्चों को सिखाते हैं, जैसे एन, एन, फिर आ सकता है एन की तरह और भी लफ्ज जो इंग्लिश में दो रूफ के इंग्लिश हैं, जैसे ऑन, एट, टू, ऑफ। जो इस तरह के लफ्ज हैं वो बीच में इस्तेमाल होते हैं, वो इस तरह यानी कि वो लफ्ज बीच में इस्तेमाल होते हैं। फिर जो सेकंड नंबर पे है बच्चों उसमें यह है कि 3 हरूफ होने चाहिए, जैसे कैट, बैट, रैट, हैट, मैट। ये बच्चों जो लफ्ज हैं ये बच्चों को लिखाए जाते हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जो एक्टिविटी है उसमें 4 हरूफ बच्चों को लिखाए जाते हैं, जैसे गोट, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। और इस तरह साउथ में तो हर 5 आ गए, ईस्ट वेस्ट आप लगा सकते हैं। फिर उसके अलावा यानी कि और कौन कौन से हो सकते हैं 4 हरूफ जिनके हाफ, HLF हाफ, TAL के टॉक, फिर गॉन, GONE गॉन। तो बच्चों जिस वक्त स्टूडेंट्स जिस वक्त हम ये अल्फाज बोलते हैं तो बच्चा लिखता है, लेकिन लिखता कब है, सुनने के बाद।
तो ये जो होते हैं डिक्टेशन, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के लिए, और उनकी आप समझ लें कि अंडरस्टैंडिंग के लिए उनकी जो लिसनिंग होती है ना, डिक्टेशन के बगैर हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये याद रखना, डिक्टेशन इज द फर्स्ट स्टेप। अगर हाँ बच्चों को डिक्टेशन लिखाना, बच्चों को लिसनिंग कराना चाहते हैं तो डिक्टेशन टॉक में ये बहुत ज़रूरी है, इमला बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने स्टेप इसमें बताया, ये स्टेप का ख्याल रखा जाता है। ये 4 तक स्टेप्स आप जा सकते हैं। स्टेप नंबर 1 पे 2 आपने सिखाने हैं, स्टेप नंबर 2 पे 3 सिखाने हैं, स्टेप नंबर 3 में 4 सिखाने हैं, स्टेप नंबर 4 में 5 सिखाने हैं। तो इस तरह जब आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बच्चे जो है ना वो लफ्ज़ सीखेंगे। और मोस्टली इसमें तकरीबन 30 वर्ड्स होते हैं बच्चों। जब 30 वर्ड्स बच्चा सीखेगा तो उसकी बच्चों वोकेबलरी इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि जब भी वो कहीं भी वो वर्ड सीखेगा, जो डिक्टेटेड वर्ड होगा, उसके लिए वो समझना मुश्किल नहीं होगा, उसके लिए उसको जानना फिर मुश्किल नहीं होगा। और दूसरा डिक्टेशन एक्टिविटीज में बच्चों आता है लाइन बाय लाइन डिक्टेशन। लाइन बाय लाइन का मतलब होता है कि हम इसको लाइन बाय लाइन को ये भी कह सकते हैं सेंटेंस बाय सेंटेंस डिक्टेशन। इसमें हम एक पूरा सेंटेंस बच्चे को लिखाते हैं। आपको पता है कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस इज अ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हम सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट दोनों को इकट्ठा लिखाते हैं। जैसे दिस इज अ बुक, द गर्ल इज वॉकिंग, द डॉल, द गुड़िया इज सर्चिंग फॉर, शी इज होल्डिंग a packet of Vaseline, she is reading, she is laughing. These words are line by line dictation words, and you can say sentence by sentence. These words, these sentences are helpful for the students who have already learned about the first step of single word dictation. So I would like to say you that if you want to teach the students listening skill by dictation, this is the second method which I have shared with you. And the third method which I am going to share with you is the full text dictation. Full text dictation means the paragraph which has more than 10 sentences. इसमें ये होता है कि एक ऐसा पैराग्राफ होता है जिसमें कम से कम 10 से ज्यादा सेंटेंस होते हैं। आप जुबानी बोलते हैं, बच्चे उसको लिखते हैं। जस्ट मसलन फॉर एग्जांपल आप विलेज का ले लें, एक टॉपिक है, दिस इज माय विलेज, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज, द विलेज इज सराउंडेड बाय ग्रीन फील्ड्स, देयर आर many trees around the village, our village is covered with the mountains and our village looks very beautiful in mountainous area. There are many shops in our village. Everything of life that we are needed are available in the village. तो मेरा मकसद ये कहने का है कि अगर आप इस तरह सेंटेंस बच्चों को लिखाएंगे तो दिस वुड बी फुल टेक्स्ट डिक्टेशन। इसको बच्चों हम बोलेंगे फुल टेक्स्ट डिक्टेशन बोलेंगे। और ये जो बच्चों डिक्टेशन होंगे ये बच्चों के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे बच्चे क्या होंगे, बच्चे ना सीखेंगे बल्कि बच्चों की स्पीकिंग भी, लिसनिंग भी सही होगी और उनकी स्पीकिंग भी सही होगी। एंड द नंबर 4 स्टूडेंट्स सेंटर्ड डिक्टेशन। बच्चों ये आपको पता है कि आप टीचिंग ऑफ इंग्लिश पढ़ रही हैं और टीचिंग ऑफ इंग्लिश के अंदर बेसिकली 4 जो स्किल्स होती हैं उनको ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। और मुझे उम्मीद है कि जब हमारे ये लेक्चर मुकम्मल होंगे तो आप इंशाल्लाह मुकम्मल इंग्लिश दान बन चुके होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेल फीमेल सारे। क्योंकि इसमें आप वो बुनियादी चीज़ सीखेंगे जिसकी आपको इंग्लिश की में ज़रूरत है, नॉट फॉर जस्ट फॉर द डिग्री ऑफ एम एजुकेशन
but also it is very important for you all throughout your life to improve the skill of English, whether you are in interview, whether you are in examination, whether you are on another country. This skill will be helpful you, fruitful for you at any place of the world. So by interest, so by full commitment, devotion, learn the things which I am going to share with you and communicate with you and convey to you. The number 4, student centered dictation. Student centered dictation means dictation which are very to every students, just like science group, just like आर्ट्स ग्रुप, जस्ट लाइक जर्नल ग्रुप. तो ये मुख्तलिफ जो यानी कि जो तालिब इल्म होते हैं, मुख्तलिफ जो कैटेगरीज के होते हैं उनके मुताबिक. तो मकसद ये है कि ये 4 जो बच्चों डिक्टेशन एक्टिविटीज़ हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल for the better listening of the students, and if you try to comprehend them, exercise them, the result will be 100% fruitful inshallah. Now I am in the coming lines, I am going to just go through the slides. Dictation for both strategies, single word dictation, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिंगल वर्ड डिक्टेशन क्या है. फिर लाइन बाय लाइन डिक्टेशन भी मैंने आपको बता दी है. फिर फुल टेक्स्ट डिक्टेशन भी मैंने बता दी है. फिर फुल टेक्स्ट डिक्टेशन यानी स्टूडेंट सेंटर डिक्टेशन मैंने बता दी है. जो स्टूडेंट सेंटर डिक्टेशन है इसमें 2 चीज़ें और भी हैं. इंफॉर्मेशन गैप, जस्ट लाइक स्टूडेंट्स वॉक इन पेयर्स, ईच वन हैविंग an incomplete version of the text with gaps in different places, not allowing to look at each other's text. They read out what they have, each completing their own text. ये हो गया बच्चों इंफॉर्मेशन गैप, यानी कि मालूमात किसी जगह खाली जगह से मिस की जाती है तो स्टूडेंट उस गैप को पूरा करते हैं. दूसरा इंफॉर्मेशन हंटिंग, स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3 के स्टूडेंट ग्रुप होते हैं. The text watch group is put on the other side of the room. Student, the text for each group is put on the other side of the room. कमरे के दूसरी तरफ जो तालिब इल्म है, कमरे की दूसरी तरफ उनको एक टेक्स्ट जो है वो दिया जाता है. S1 से बच्चों मुराद है स्टूडेंट 1, क्योंकि इसमें 3 स्टूडेंट होते हैं. स्टूडेंट 1 goes to the text. जो स्टूडेंट 1 है वो उस पूरे टेक्स्ट को पढ़ता है, यानी उस टेक्स्ट की तरफ जाता है, रीड्स उसे पढ़ता है, एंड मेमोराइजेस और उसे ज़बानी याद करता है. आज सेक्शन उसका एक हिस्सा. रिटर्न्स टू द ग्रुप में वापस आ जाता है, एंड सेज और बताता है व्हाट इज रिमेंबर्ड, उसने क्या याद किया उसको वो ज़बानी कह देता है. S2 राइट्स इट डाउन, जो स्टूडेंट दूसरा होता है उसे लिखता है, एंड S3 चेक्स what S2 has written, और जो S3 है यानी कि जो तीसरे नंबर स्टूडेंट होता है वो चेक करता है कि स्टूडेंट 2 ने क्या लिखा है. They may then change roles and continues. इस तरह वो अपनी बारियां तकसीम करते हैं, एक दूसरे की जगह आते जाते हैं, जिसकी वजह से ये सिलसिला ये जारी रहता है. और इस तरह ये मैंने आपको ये पहले बता दी है कि लाइन बाय लाइन डिक्टेशन, ये तो मैंने आपको इससे पहले बता दी है. अभी मेरे बच्चों 5 मिनट की एक्टिविटी है आपके लिए. इस एक्टिविटी को कल मुझे तकरीबन सिर्फ 11 स्टूडेंट्स ने करके भेजा था. मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन सिर्फ वो मैंने ऊपर से टेक्स्ट देख लिया 11 स्टूडेंट्स ने. अभी आपने बच्चों जो मुझे एक्टिविटी करके भेजनी है ना, अभी ये आपके पास टाइम है 5 मिनट का. आई एम ग्रांटिंग यू ओनली 5 मिनट्स, एंड विद इन 5 मिनट्स you by promise will have to write the activities to develop listening skills. ये आपने लिखनी है और ज़बानी लिखनी है. जो मैंने आपको 8 पढ़ाई हैं, बल्कि 7 मैंने पढ़ाई हैं, इनको आपने ज़बानी लिख के मुझे आपने व्हाट्सअप करना है ताकि मुझे पता चले
कि कौन कौन सा स्टूडेंट बारीक बीनी से तवज्जो से लेक्चर सुन रहा है और उसे याद भी कर रहा है। और आपने बच्चों ज़बानी लिखने की कोशिश करनी है। हालांकि आप ये देख रहे हैं, आपके सामने ये स्लाइड है जिस तरह मेरे सामने है, लेकिन इसके बावजूद ये है कि आपने ट्राई करनी है ज़बानी लिखें। और मैं 5 मिनट अभी खामोश रहूँगा। दिस इज़ द एक्टिविटी फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद फिर मैं आपसे दोबारा मुखातब होता हूँ। दरवाजे को उठे ना साउंड सुन दी दरवाजे ये किधर आया है ये रहन दो वो कोठे जाए तो गिले शिले हो जाते गिले हो जाने दरवाजे खराब हो कौन छुट्टी है हम को सुना करना है जिम्मे पानी लंदन में जरा पानी में ड्रिफ्ट है भाई वहां पूरा धोखा इसमें ऐसे तो नहीं है
वीडियो का नाम अपना टीम देखते वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अभी मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों ने यकीनन ये एक्टिविटी कर ली होगी। तो अभी आपने बच्चों करना ये कि ये जो एक्टिविटी है ना ये मुझे ना आप टेक्स्ट कर दें, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है ये मुझे आप ना अभी ना व्हाट्सअप कर दें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आज वो कंपैरेटिव एजुकेशन का लेक्चर होना था, लेकिन चूंकि वो बिजली का प्रॉब्लम था नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह कल एक कंपैरेटिव एजुकेशन का लेक्चर होगा, यानी कि मतलब है 2-2 लेक्चर मैं इकट्ठे करके दूंगा और 2 लेक्चर इसके होंगे कल इंशाल्लाह। होगा घंटे सवा घंटा 1.5 घंटे के टाइम होगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। एक बार आप फिर देख लें, ये मैंने मेन यानी कि आपके सामने ये शेयर किए हुए हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अब्दुल वहाब और मैंने अब्दुल वहाब वो तो बंद करनी बंद कितों हो गए। नहीं ठीक है, इतों स्टूडेंट आने लगे हुए करेंगे बस वो ना नहीं मैं दसना। अच्छा ठीक है, मैं समझ लगी ए मैंने